Namaste ji, namaste. So, an important judgment was delivered by the Supreme Court in August of 2021, and this is a very important legal current affair. A lot of questions can be framed from this very judgment for your upcoming higher level law entrance examinations. तो पहली बात जजमेंट का नाम पिछड़ा वर्ग कल्याण महासभा हरियाणा वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा. तो इसके अंदर पहला जो प्रश्न था, एंड इफ यू एक्चुअली वॉच दिस लेक्चर टिल द एंड, all relevant MCQs that the examiner can ever ask you associated with this topic will be covered. कि जी जो हरियाणा सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करी है ऑन विच दे आर डिफाइनिंग द क्रीमी लेयर बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरियन अलोन, कि इनकम के बेसिस पे ही सिर्फ क्रीमी लेयर डिसाइड कर रहे हैं. इज दैट रियली वैलिड? ए, एंड दैट इज वायलेटिंग आवर फंडामेंटल राइट्स एज गिवन इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तभी तो हम आर्टिकल 32 के तहत ये रिट लगा के बैठेंगे, right? And obviously this is SLP, and SLP is generally a given where? Is it 136, 132? Revise that concept. Alright, so the net decision is that economic criterion cannot be the sole basis of identifying creamy layer. I've already given you the decision. But now, since we are going to be tackling examinations, we need to understand what is happening, and especially from CLAT PG perspective, all of this you need to basically make a note of कि कहानी क्या है और क्या चक्कर है. Okay, so writ petition has been filed under Article 32. Obviously, writ has to be filed under 32. For quashing, किस लिए? For quashing notifications. So this is how you read a judgment as well. Dated, these two judgments issued by the first respondent कौन है? State of Haryana जी है. As arbitrary and violative of Article 14, 15 and 16. This has been argued that our rights under 14, 15, 16 have been violated. So we are going to be using one of our fundamental rights, which is Article 32, to move the Supreme Court to pray for a writ to quash these notifications. अभी तक कहानी क्लियर है कि कोई notifications आई हैं और हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं, या आप कह सकते हैं petitioner पहुंच गया है कि भाई साहब ऐसा है, इसको खारिज करो. ठीक है जी. अब हम ऑब्वियसली पूरी जजमेंट के अंदर तो नहीं जाएंगे, दैट वी आर गोइंग टू बी प्रोबिंग ईच एंड एवरी लाइन, बट वी आर सर्टनली गोइंग टू बी कवरिंग इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एग्जामिनेशन. ठीक है जी. तो लॉ, लीगल जर्नलिज्म एंड लॉ रिपोर्टिंग इज अ सेपरेट फील्ड ऑल टुगेदर. टैकलिंग दिस फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज अ सेपरेट थिंग ऑल टुगेदर. So I'm not discussing this as if I'm reporting the judgment to you. I'm covering out the questions first and foremost. ठीक है जी. Now, by considering the existing defined criteria of creamy layer by the National Commission for Backward Classes. So National Commission for Backward Classes being mentioned, this is now given where, in which article of the Constitution? That's Article 338B. Given by which amendment? 102nd Amendment. They were given constitutional status. And creamy layer is also, there is some criteria that is being defined by the National Commission for Backward Classes. All, please make bullet points. You can pause the lecture if you wish to, and then proceed ahead. Now, reservation backward class is recommended by the Mandal Commission. So if they ask you, अब क्लैट पीजी के अंदर ये वाली पूरा पैराग्राफ उठा के दे दिया एंड डैश कर दिया, तो ऑब्वियसली इट्स मंडल कमीशन, राइट? एंड वाज स्क्रूटिनाइज्ड बाय दिस कोर्ट इन वेयर, इन विच केस? Indira Sahni versus Union of India. So they are referring it to as Indira Sahni Union of India as Indira Sahni 1. So there has to be an Indira Sahni 2. वो इस जजमेंट के अंदर बार बार रेफर किया हुआ है. ठीक है जी. Now they said this court in Indira Sahni directed state governments to identify creamy layer amongst the backward classes and exclude them from the purview of reservation. तो एक बात तो क्लियर हो गई, क्रीमी लेयर वालों को हम कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका जो रिजर्वेशन का जो पॉइंट है, रादर नॉट पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट जो है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो हम आपके लिए सीट रिजर्व कर रहे हैं कि आप आके बैठिए. लेकिन अगर आप ऑलरेडी यू हैव सोशली एडवांस्ड, आप एक ऑलरेडी IAS IPS अफसर के लड़का या लड़की हैं, या आपके पास बहुत सारा पैसा है, पावर है, लेकिन आप फिर भी उस कास्ट को बिलोंग करते हैं जिनके लिए, या कास्ट या क्लास ऑफ पीपल को बिलोंग करते हैं, तो अब हम आपको रिजर्वेशन नहीं दे पाएंगे क्योंकि अब आप बैकवर्ड क्लासेस के अमंग क्रीमी लेयर में हैं. समझ रहे हैं बात को? सो दिस इज द मेन फंड ऑफ रिजर्वेशन, एंड दिस इज द मेन फंड ऑफ एक्सक्लूडिंग दीज फोक्स from backward classes and not giving reservation to them, because otherwise it will defeat the very purpose of reservation. ठीक है जी. The said commission was assigned the function of specifying the basis for excluding socially advanced persons creamy layer for the backward classes. तो यहाँ पे हरियाणा सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, उन्होंने कहा जी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, और इनका काम ही यही था कि स्पेसिफाई द बेसिस, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सक्लूड, हाउ विल यू जज समवन as socially advanced, as an out of the backward classes now, and therefore
will not be basically given reservation because otherwise it will defeat the very point of reservation. ठीक है जी. इन्होंने ये वाली जो कमीशन आपकी बनी हरियाणा सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, इसके आपको चेयरमैन वेयरमैन करने की जरूरत नहीं, दिस इज ऑल स्टेट लेवल. तो इन्होंने कहा जी, इन्होंने एक एनेक्सर ए फाइल करा था जिसके अंदर इंक्लूडेड चिल्ड्रन ऑफ दोज हु हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स. व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? मान लीजिए सीएजी का लड़का लड़की है, सुप्रीम कोर्ट जज साहब का लड़का लड़की है, फाइनेंस कमीशन के हेड का लड़का लड़की, राइट? सो द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, चिल्ड्रन ऑफ दोज हु आर हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, हु आर क्लास 1 ऑफिसर्स ऑफ ऑल इंडिया सेंट्रल एंड स्टेट सर्विसेज, class 2 officers of the central and state services, employee in PSUs, persons belonging to armed force including paramilitary forces. तो इस अब अगर उन्होंने कह दिया कि जी अगर आप इन सब खानदानों और परिवारों से हैं, ग्रेट, यू हैव सोशली एडवांस्ड, अब आपको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि अब आप क्रीमी लेयर में हैं. उसके बाद क्या कहते हैं कि 2016 में एक एक्ट पास होती है. 2016 में एक एक्ट पास हुई, एंड दिस इज प्रीटी मच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर ये पूरी जजमेंट की हुई. उस एक्ट के तहत नोटिफिकेशंस पास हुई जिसके अंदर ये कहा गया कि ऐसा है, चिल्ड्रन ऑफ पर्सन्स हैविंग ग्रॉस एनुअल इनकम अप टू ₹3 लाख शैल फर्स्ट ऑफ ऑल गेट द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन सर्विसेज एंड एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो 3 लाख से कमाने वाले, जिनके माता पिता 3 लाख कमा रहे हैं, मतलब इन द सेंस 25,000 रुपये महीना तक, क्योंकि 25,000 इंटू 12 भी 3 लाख रुपये ही होगा, तो उनको जी हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको रिजर्वेशन पहली प्रायोरिटी देंगे. देन दैट नोटिफिकेशन अंडर द एक्ट, द लेफ्ट आउट कोटा शैल गो टू द क्लास ऑफ बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस हु अर्न मोर देन ₹3 लाख बट अप टू ₹6 लाख पर एनम. तो प्रश्न ये उठा कि आप बैकवर्ड क्लासेस को पहली बात तो बाइफिकेट कर देंगे कि अप टिल 3 देन 3 to 6. अब अप टिल 3 वाले इतने सारे हो गए तो 3 to 6 वाले कहाँ जाएंगे? एंड इज दिस रियली अलाउड? कैन दिस रियली बी डन? वो कहते हैं जी वी रियली वी डाउट इट दैट वेदर यू कैन रियली डू इट. अच्छा जी. So the principal contention of the petitioners is that by notifications dated 17/8/2016 and 28/2018, you have not followed the law laid down in Indira Sahni 1, and these very notifications, ये जो आपने 3 लाख 6 लाख वाली जो करी है काम, it is violative of section 5 of the 2016 act, according to which social, economic and other factors are to be taken into account. आपकी एक्ट खुद कह रही है जिसके तहत आप नोटिफिकेशन इशू कर रहे हैं कि सोशल, इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स को आप अकाउंट में लेंगे. इकोनॉमिक तो लेंगे लेकिन सोशल भी लेंगे, अदर फैक्टर्स भी लेंगे. ये क्या आपने अप टिल 3 और फिर 3 to 6 सिर्फ इनकम बताई और कह दिया कि क्रीमिलेयर हो गए तुम? क्या पता भैया उस इनकम के साथ हमें और बहुत सारी पीड़ा हो जो हमें सोसाइटी ने इतने सालों से दी और अभी भी हम रिजर्वेशन के हकदार हों. हो सकता है, राइट? सो दैट इज बेसिकली द लड़ाई. ठीक है जी. अच्छा, तो यहाँ पे जो आपकी जो ये नोटिफिकेशन थी, इट रिजल्टेड इन प्रिक्लूडिंग वन सेक्शन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ पर्संस हुज एनुअल इनकम वाज बिटवीन 3 to 6 लाख फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अप टिल 3 वालों का अगर ये काम हो जाए कि वो हैं ही बहुत सारे, तो 3 to 6 वाले कहाँ जाएंगे जी? तो फिर इनको आपने डिवीजन करी क्यों है? तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जी ने कह दिया कि ऐसा है. In clear terms, this court held in Indira Sahni 1 that the basis of exclusion of creamy layer cannot be merely economic. तो paragraph number 792 of Indira Sahni 1 दे रखा है. We are not going to get into that paragraph because it is pretty much irrelevant for the purposes. But यहाँ पे इन्होंने बता रखा था Indira Sahni 1 में सुप्रीम कोर्ट भैया ने हमारे ने कि that the basis of exclusion of creamy layer it cannot be merely economic. Sorry, that is just not happening. ठीक है जी. बट आपने तो करा दिया ना नोटिफिकेशन के द्वारा. अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये डिसीजन कहाँ जा रहा है. अच्छा, सो दिस कोर्ट हेल्ड, इंदिरा साहनी 1 के बारे में बात हो रही है, दैट पर्सन फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस हु ऑक्यूपाइड पोस्ट्स इन हायर सर्विसेज लाइक IAS, IPS, ऑल इंडिया सर्विसेज had reached a higher level of social advancement and economic status and therefore were not entitled to be treated as backward. Such persons were to be treated as creamy layers without any further inquiry. अब ऐसा है जी कि अगर आपके यहाँ पे कोई मान लेते हैं कि बैकवर्ड, पहले जी बैकवर्ड क्लासेस से एक आदमी को लेट अस से रिजर्वेशन मिली, देन ही हैज मेड इट इन लाइफ, लेट अस से क्रैक्ड UPSC एंड देन क्लियर्ड इट. अब उनके आज के डेट में बच्चे हैं, क्या उनको भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? क्योंकि अब तो वो पावरफुल पोजीशन में है, वो मतलब बेसिकली दे हैव ब्रोकन थ्रू दैट जनरेशनल यू कैन से कर्स और पॉवर्टी, नाउ दे हैव एडवांस्ड, तो उनको रिजर्वेशन देके हम क्या करेंगे? तो इन्होंने कहा जी हमने आपको पहले ही बताया था
कि ऐसे ऐसे केसेस में these are not backward, these are creamy layer amongst that class, ठीक है जी, and they should be treated as outside the backward class, all right. And so यहाँ पे यही काम इन्होंने करा कि this court in Indrasani 2 held that exclusion of the above mentioned categories is a judicial declaration made in Indrasani 1 कि जिन्होंने बता दिया कि जी हमारा डिसीजन यही है. In spite of section, now the final decision, in spite of section 5 subsection 2 of the 2016 Act, making it mandatory for identification exclusion of creamy layer to be on the basis of social, economic and other relevant factors, the state of Haryana has sought to determine creamy layer from backward classes solely on the basis of economic criterion. State of Haryana वालों ने बदमाशी कर दी, ठीक है जी, and has committed a grave error in doing so. Therefore, we are quashing the notification and therefore we are saying जहाँ से हमने कहानी शुरू करी थी, economic criterion cannot be the sole basis of identifying creamy layer, and that's all that there is to this judgment. ठीक है जी, this pretty much has covered out each and every detail. Check links in the description and wishing you all the very best. Take care, bye.